تقریر پیش کرنے کے لیے مدرسہ فیضان رضیہ کے ایک طالب علم کو آواز دوں، جس میں میری مراد محمد کاوش ہے، وہ آئے اور اپنے انداز میں تقریر فرما کر ہم سامعین کے قلب و جگر کو منور و مجلہ کریں۔ اس کا نمبر نہیں آ رہا، جبھی تو پہن کا ہے وہ وہ پکڑ لیا اس کو چل نہیں گئے پھنسوا گا پھنسوا گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی علی الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص اور عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد ارواح نافذہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے اور اس کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا اور ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا، اور ایمان کی خوش نصیبی، ایمان کی سلامتی اسی بات میں ہے کہ انسان اس بات کو مان لے، اس بات کو اپنے دل میں عہد کر لے، زبان سے اقرار کر لے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ اس کائنات کے اندر ایک دن وہ آئے گا جب کچھ باقی نہ رہے گا، ایک دن آئے گا کہ پوری کائنات فنا ہو جائے گی، کچھ باقی نہ رہے گا، اور اسی دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اسی دن کو محشر کا دن کہتے ہیں۔ محشر میں انسان کا کیا ہوگا، انسان کا حال کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں محشر میں وہ دردناک دن ہوگا، محشر کا وہ خطرناک دن ہوگا، انسان کو اللہ کا خوف اتنا ہوگا، اللہ کی خشیت انسان کے دل کے اندر اتنی ہوگی کہ انسان کی خود کی توجہ اپنے وجود پر نہ ہوگی، انسان خود کو دیکھنے کی توجہ نہیں کرے گا۔ انسان ایسے عالم میں کیا ہوگا جب رشتے ٹوٹ رہے ہوں گے، بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہ پہچانے گی، سارے رشتے ٹوٹ رہے ہوں گے، اور جتنے بھی دوست ہوں گے، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارے جتنے بھی دوست ہیں دنیا کے اندر، تم نے جس کو بھی اپنا دوست بنایا ہے، قیامت کے دن وہ سارے تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہارے پکے دشمن بن جائیں گے، اور میدان محشر کے دن فرشتوں کا عالم کیا ہوگا، سارے فرشتوں کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیدنا جبریل امین سے لے کر سارے فرشتوں کی حالت یہ ہوگی کہ سارے فرشتے اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے تھر تھرا رہے ہوں گے، کسی کی یہ ضرورت نہ ہوگی کہ کچھ اپنے لب ہلا کر کچھ بول سکے، اللہ کی بات کر سکے ایک مرتبہ، بلکہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر
कहने पर काबे अहबार ने कुछ क़यामत की बातें फरमाई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की कि काबे अहबार मुझे कुछ क़यामत के बारे में कुछ ऐसी बातें बताओ, मुझे क़यामत का कुछ ऐसा किस्सा सुनाओ जिसको सुनकर मेरे दिल के अंदर अल्लाह की खशियत और बढ़ जाए, अल्लाह का खौफ मेरे दिल के अंदर और बढ़ जाए। आज हम चंद नमाज़ें पढ़कर सोचते हैं कि हमें क़यामत के अंदर क्या मुसीबत आएगी। आज हम हज करने के बाद सोचते हैं कि हमें क़यामत में हमारा क्या होना है। वो काबे अहबार फरमाते हैं कि हमने पिछली कुतुब में पढ़ा है जो कुरान से पहले आई थी, हमने उसके अंदर पढ़ा है कि क़यामत के दिन जहन्नम के मुंह में 70,000 लगामें डालकर फरिश्ते उसको खींच कर दिला रहे होंगे। हमने ये बात पढ़ी है कि क़यामत के दिन, महशर के दिन, क़यामत की जहन्नम के मुंह में 70,000 लगामें डालकर फरिश्ते उसको खींच कर दिला रहे होंगे। उस वक्त लोग देखेंगे जब जहन्नम की आग के फुहारे छूट रहे होंगे, जहन्नम की आग की होलना क्या देखेंगे तो अंबिया किराम की ये हालत होगी, अंबिया किराम की ये हालत होगी कि जनाब मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में अपने घुटनों को टेक कर अल्लाह की बारगाह में यूज़ करेंगे, या मौला तूने जो मुझे कलाम या मौला तूने जो मुझे शर्फ़ हम कलामी अता फरमाया है, या अल्लाह जो तूने मुझे मकाम कलामी अता फरमाया है, या अल्लाह तुझे उसी मकाम का वास्ता, या अल्लाह आज तेरा मूसा किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज तेरा मूसा सिर्फ अपने ईमान तलब करना चाहता है। जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह की ये कैफियत होगी। आज हम तो मस्जिदों को बनवाते हैं, मस्जिदों को तामीर करवाते हैं। जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तो काबा बनवाया, अल्लाह का घर बनाया। आज हम तो जानवर के ऊपर छुरी रखकर उसको जबा करते हैं, उसकी कुर्बानी करते हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तो अपनी औलाद के ऊपर छुरी रखी, वो इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने घुटनों पर जमीन में टेक कर अल्लाह की बारगाह में निवास करेंगे। ऐ मौला तूने जो मुझे मकाम खुल्लत अता फरमाया है, आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज बस मैं अपने लिए अमान तलब करना चाहता हूँ। जनाब काब फरमाते हैं हक तो यहाँ है सारे नबी अपने लिए मांगेंगे और जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने घुटनों को जमीन में टेक कर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज़ करेंगे, ऐ मौला आज मैं अपनी कुंवारी बतूल माँ के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज बस मैं अपने लिए अमान तलब करना चाहता हूँ। जब सारे नबी अपने अपने लिए मांग रहे होंगे, मूसा कलीमुल्लाह अपने लिए मांग रहे होंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने लिए मांग रहे होंगे, ईसा रूहुल्लाह अपने लिए मांग रहे होंगे, तो लोग देखेंगे एक जात ऐसी होगी जो अपनी पेशानी को सजदे में रखकर अपने लिए कुछ नहीं मांग रही होगी, बल्कि अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए बख्शिश की दुआ कर रही होगी। लोग देखेंगे एक जात ऐसी होगी जब सारे नबी अपने अपने लिए मांग रहे होंगे तो वो जात अपने सर को झुकाकर अल्लाह की बारगाह में अपने गुनहगारों की उम्मतियों के लिए बख्शिश की दुआ करेगी। दोस्तों ये मैदान क़यामत है, इसको क़यामत का दिन बोलते हैं, महशर का दिन इसको बोलते हैं। महशर का दिन आने से पहले क़यामत एकदम से नहीं आएगी, क़यामत आने से पहले मेरे आका गैब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी कुछ निशानियां बताई। मेरे आका ने उसकी 3 निशानियां बताई। उन निशानियों में से एक निशानी तो ये है कि लोग नमाजों को ज़ाया करेंगे। इस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इस नमाज तक करने का एक मतलब तो ये है कि लोग सिरे से नमाज ही न छूटेंगे। आज अगर हमें पता है कि सुबह 8 बजे की हमारी ट्रेन है तो हमारी 4 बजे से रात को आँख खुल जाती है। हमें ये ख्याल आता है कि अगर मैं सो गया तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, अगर मैं जागा नहीं, मैं उठा नहीं टाइम से तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मगर हमें क्या हो गया, फजर की नमाज में हम बड़े बिस्तर के अंदर सोते रहते हैं। जो मुसलमान आज अपने सीने को चौड़ा करके गुरूर से कहता है हाँ हम मुसलमान हैं, उस मुसलमान के अंदर उसको क्या हक है अपना सीना चौड़ा करके जीने का, जिसके नजदीक नमाज छूटने से ज्यादा ट्रेन की अहमियत हो। नमाज को छोड़कर ट्रेन के लिए जगता है, उसको आखिर क्या हुआ कि सीना चौड़ा करके दुनिया के अंदर जी सके। मेरे आका गैब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो लोग मस्जिद को तामीर करवाते हैं और तामीर करने के बाद उसको वीरान कर देते हैं, अल्लाह का घर तन्हाई की रातों की तन्हाई में तारीकी के अंदर वो मस्जिद अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, या अल्लाह जिसने मुझे बनाया और बनाने के बाद वीरान कर दिया, या अल्लाह तो उसके घर को वीरान कर दे। मुझे बताओ जिस कौम को बर्बादी की दुआ, जिस कौम की बर्बादी की दुआ अल्लाह का घर करता है, जिस कौम को बर्बाद करने की दुआ अल्लाह का घर कर रहा है, फिर वो कौम आबाद कैसे
कैसे हो सकती है? एक निशानी तो ये बताई कि नमाजों को ज़ाया करेंगे, दूसरी निशानी ये कि अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की कस्में खाई जाएंगी। आज लोग बात बात में कहते हैं ना, अम्मा की कसम, बाप की कसम, भाई की कसम, वो भी एक तो गैरुल्लाह की कसम खाते हैं और वो भी झूठी कसम खाते हैं। मेरे आका ने फरमाया सच्ची बात में भी जो कसरत से अल्लाह की कसम खाता है, अल्लाह उसके रिस्क में तंगी फरमा देता है। आज हमारा कारोबार नहीं चलता है, हम कहते हैं खाने के लिए कुछ नहीं है, हो सकता है इसकी एक वजह ये हो। और तीसरी बात, तीसरी निशानी मेरे आका ने ये फरमाई कि गाने और शराब को रिवाज दिया जाएगा, गाने और शराब को ज्यादा आम कर दिया जाएगा, जिसको आज हम अपने माथे की निगाहों से देख सकते हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं कुछ बस्तियां, कुछ मोहल्ले ऐसे होंगे जिनको रातों रात जला करके राख कर दिया जाएगा। कुछ बस्तियां, कुछ मोहल्ले ऐसे होंगे जिनको जला करके रातों रात के अंदर जला करके तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। दूसरी जगह मेरे आकर इरशाद फरमाते हैं उन्हीं लोगों को, दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं तो उन लोगों को ऐसी बीमारी लगेगी जिस बीमारी को लगने के बाद वो इंसान सोचेंगे कि इस बीमारी को नाम क्या दें, कि लाइलाज बीमारी हमें कैसे लग गई, इसका तो नाम क्या रखे, उनके नाम भी समझ में ना आएगा। ऐसी बीमारियां उनके जिस्म के अंदर पैदा कर दी जाएंगी। और तीसरी जगह मेरे आकर इरशाद फरमाते हैं उनकी शक्लें बदल दी जाएंगी, उनके चेहरों को तब्दील कर दिया जाएगा। किसी की शक्ल बंदर की तरह हो जाएगी, किसी की शक्ल सूअर की तरह हो जाएगी। और चौथी जगह मेरे आकर इरशाद फरमाते हैं उनको जमीन में धंस दिया जाएगा। सहाबा किराम लरज़ जाते हैं और आका की बारगाह में इरशाद कर फरमाते हैं या मौला, जिनको ये अजाब मिलेगा, जिनको ये सजा मिलेगी, आखिर उनका कसूर क्या होगा? या अल्लाह, आका, या मेरे मौला, उन्होंने ऐसा क्या काम करा होगा जिसकी बुनियाद पर उनको ये सारी सजाएं दी जाएंगी? तो मेरे आका ने फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो लोग, सजा ये उन लोगों को मिलेगी जो शराब को आम करते हैं, कसरत से जिना करते हैं और शराब को आम करते हैं। हमारी आका की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह में शराब पीने से बचाए और 5 वक्त मस्जिद के नमाज बना दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।